محبوب کے جیسے گزر ہوا، محبوب علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی حضور کے ساتھ بیٹھ گئے، تو کہتے ہیں حضور ایسے بیٹھے بیٹھے آپ آرام فرمانے لگے، چادر اوڑھی، کہتے ہیں ہم نے مڑ کے جو دیکھا ایک درخت، یہ بخاری کے اندر موجود ہے حدیث مبارکہ، بخاری سنا رہا ہوں تاکہ کسی کو اعتراض نہ رہے کہ محبوب کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ ایک درخت ہے جڑوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا میرے محبوب کے قدموں تک پہنچا، محبوب کے قدموں میں آ کے گر گیا اور آ کر یوں شکل بنا لی جیسے کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ وہ درخت چیرتا ہوا محبوب کے قدموں تک آیا، محبوب کے قدموں کا بوسہ لیا، چوما، پھر کھڑا ہوا، واپس پلٹ گیا، میرے محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عجیب ماجرا ہے، ہمیں آپ منع فرماتے ہو کہ ہمیں سجدہ نہ کرو، تعظیمی سجدہ بھی منع ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور نہیں ہے، یہ درخت ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس نے جب سے پیدا ہوا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، میرے مولا ایک دن میرے نصیب بھی کھلا دے، ایک دن نبیوں کا سردار میرے پاس بھی آئے، میرے قریب بھی آئے، میرے دل کی خواہش ہے میں محبوب کے قدموں کو بوسا دوں، میں محبوب کے قدموں کو چوموں، میں بوسا دوں۔ یہ تو اس کی دعا تھی، اللہ نے دعا قبول کی ہے۔ فرمایا سجدہ تعظیمی بھی منع ہے، سجدہ نہیں کرنا، اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا بیوی کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیا کرتی؟ بیوی کو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، یعنی شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو کس کو ہوتی؟ بیوی کو ہوتی، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا شرک سے پاک، پہلا شخص کون ہے جو شرک سے پاک ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات، یہ جو رات گزر رہی ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ دوسرا شخص میرے محبوب نے فرمایا جو زنا کا عادی ہو، زناکاری کرنے والا شخص، اس رات اللہ کی رحمت سے وہ بھی مایوس رہ جائے گا، اللہ کی رحمت کو نہیں پائے گا، اللہ کی بخشش کا پروانہ اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ ایک زنا کا عادی ہوتا ہے اور ایک اگر زنا ہو گیا، توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی، تو اس کا معاملہ اور ہے۔ ایک ہے ہی عادی مجرم، اس کا کام ہی زنا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، محبوب کی حدیث مبارکہ، حدیث قدسی کے لفظ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اس رات وہ بھی محروم رہ جائے گا۔ نمبر 3 شراب پینے والا، دعا کرو اللہ اس نحوست سے ہمارے ملک سے اس کی چھٹکارا عطا کرے، اس نحوست سے ہمارے ملک کو پاک فرما دے۔ شراب کا عادی، میرے محبوب نے فرمایا اس رات جتنا گر گرا کے مانتا رہے، جب تک شراب نہیں چھوڑے گا اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ اور شراب تو اتنی نحوست والی چیز ہے، میرے محبوب نے فرمایا جو ایک گھونٹ پی لے، شراب کا ایک گھونٹ، 40 دن تک اللہ اسے سجدے کی توفیق بھی نہیں دیتا، اگر وہ سجدہ کرے تو اللہ اس کے سجدے قبول بھی نہیں کرتا۔ اتنی گندی چیز، غلیظ چیز ہے۔ تو اگر کوئی پیتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اس رات کی برکت سے اللہ ہمیں اس عادت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا عطا فرمائے۔ چوتھا شخص میرے محبوب نے فرمایا جو والدین کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں کرنے والا، اس رات وہ بھی محروم رہ جائے گا۔ افسوس کے ساتھ آج ہمارے معاشرے کے اندر والدین کا ادب و احترام بالکل دور دور تک نظر نہیں آتا۔ میں حقیقت آپ کے سامنے
सामने अर्ज कर रहा हूं। बेटा बाप के सामने आंखें दिखाता है और कहता है मैं समझदार हूं, मैं मॉडर्न दौर का जवान हूं, आप बूढ़े हो गए, आपको क्या पता, मैं ही फैसले करूंगा। जब बेटे फैसला करें बाप की मौजूदगी में तो अदब कहां से आएगा, एहतराम कहां से आएगा। और फिर दूसरी बात, हम माँ की शान बयान करते हैं, माँ का मकाम बयान करते हैं, माँ ठंडियां छावा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये सारी तारीफें, सारी अजमतें अपनी जगह पर। लेकिन इस माशरे ने एक जुल्म और बिठा दिया, जहां बाप को इज्जत देनी थी, बाप के मकाम को गिराया गया, बाप की इज्जत को गिराया गया। और लाइव इंसल्ट करते हैं लोग, लाइव इंसल्ट। किस तरह? गाड़ी ली, गाड़ी के पीछे क्या लिखा होता है, आपने कई मरतबा जुमले सुने होंगे, ये मेरी माँ की दुआ है। देखा ना, लिखवाते नहीं है, ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ है, मुझे इससे इख्तिलाफ है, इसलिए क्योंकि जब तुमने ये लिखवाया ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ है, आप बताओ तेरा बाप तुझे बददुआएं देता रहा? ये जो गाड़ी के ऊपर तो सवार है, माँ ने तो दुआ दी, बाप बददुआएं देता रहा, तो लाइव इंसल्ट कर रहे हो। बाप जिसने खून पसीना एक करके तुझे पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलाई और खुद ओवर टाइम लगा लगा के तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, जवान किया, और जवानी के अंदर जब तुझे शबाब का रुख चढ़ा, फिर तूने गाड़ी दी और फिर तू लाइव इंसल्ट करके कहता है ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ है। बताओ बाप कब बददुआ देता रहा? वो खंबे के ऊपर चढ़ के बददुआ देता रहा, वो पसीने के अंदर शराबूर होके बददुआ देता रहा। मेरे भाई, बाप का भी मकाम है, जहां माँ का अल्लाह ने कुरान के अंदर वबिल वालिदैनी एहसाना कहा है। माँ का जिक्र अलहदा एक जगह है, बाकी वबिल वालिदैनी एहसाना, वबिल वालिदैनी एहसाना, वबिल वालिदैनी एहसाना, वालिदैन का जिक्र है। आज माँ को रुतबा दिया, मैं माँ के रुतबे का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करें, बाप को भी इज्जत दें, बाप से भी मशवरा लें, बाप को भी पहचाने। बाप ने आपकी खातिर क्या कुछ नहीं किया ये आप जानते नहीं हैं। बाप ने आपकी खातिर, जब बच्चा, एक मैंने मिसाल पढ़ी है, बच्चा छोटा सा बच्चा था और बाप उसके सामने बैठा है और बच्चा बार बार कहता है बाबा वो सामने जो दीवार पर बैठा है वो क्या है? कहता है बेटा कौवा है। क्या है? कौवा है। रिवायत के लफ्ज है, तारीख किताब गवाह है, वो बच्चा 40 मरतबा कहता है बाबा बताओ ये क्या है? बाप ने एक मरतबा भी झिड़क के नहीं कहा बेटा, एक मरतबा को बताया, 20 मरतबा 30 मरतबा बता दिया, बता तो रहा हूं ये कौवा है। हर मरतबा प्यार में और इजाफा होता है, कहता मेरा लाल ये कौवा है, मेरा चांद ये कौवा है, मेरे लख्ते जिगर ये कौवा है। हर मरतबा प्यार और बढ़ता है, दिल चाहता है फिर बेटा पूछे, मैं फिर बताऊं बेटा कौवा है। 40 मरतबा, फिर वक्त आ गया, बच्चा जवान हो गया, वो बुढ़ापे को पहुंच गया, फिर इसी तरह के खाकर कौवा दीवार पे आकर बैठ गया। कौवा दीवार पे आके बैठ जाता है। अब बाप ने वो बात याद आई, आज मैं देखूं तो सही, जब मैं जवान था, मेरा बच्चा छोटा सा था और मेरा बच्चा कहता था बाबा बताओ ये क्या है? मैं 40 मरतबा बताता रहा, मेरे प्यार में कमी नहीं आई और इजाफा होता गया। आज मैं भी देखता हूँ मेरा बेटा मुझे क्या कहता है, आज बुढ़ापे में पहुंच गया हूँ, प्यार क्या कहता है बेटे को। बाप ने कहा बेटा बताओ ये सामने दीवार पे क्या बैठा है? बेटा कहता है बाबा ये कौवा है। दूसरी मरतबा पूछा, बेटा कहता है बाबा ये कौवा है। 3 मरतबा 4 मरतबा, जब 6ठी मरतबा बाप ने कहा, पापा ने कहा बेटा बताओ ये क्या है? बेटा चीख के बोला, कहा बाबा तुझे पता नहीं है ये कौवा है? एक मरतबा समझ नहीं है ये कौवा है? बताओ यार, आज आपसे सवाल करता हूँ, जब आपका बचपन था तो बाप प्यार करता था, आज बाबा बड़ा बूढ़ा हो गया, आज आपका प्यार कहाँ गया है?
उसकी मोहब्बत को कहाँ गुम कर दिया तुमने, आज मोहब्बत को कहाँ जाकर तुमने दफन कर दिया, किस कब्रिस्तान में जाकर उसको दफना के आ गए हो। मेरे भाई, बाप की कदर करो, बाप के मकाम को पहचानो। जहाँ माँ के कदमों को चूमने का हुक्म है तो बाप को भी गालियाँ देने का हुक्म नहीं है, बाप के हाथ चूमने का भी हुक्म है, कुरान के अंदर पाँव चूमने का भी हुक्म है। सिर्फ माँ के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, फरमाया बाप के हाथ चूमो, दरवाजा तभी खुलेगा जन्नत का जब तक बाप का। वो बिलवालिदैन इहसाना का जिक्र है, एक का अदब नहीं करना, दोनों का अदब करना है। जब तक मेरे महबूब ने फरमाया जब हुक्म की बारी हो तो पहले बाप को तरजीह दो हुक्मन, और जब ताज़ीम की बारी हो तो फिर माँ को तरजीह दो अदब और एहतराम के अंदर। जब बाप कहते ये करना है तो फिर बेटा आंखें झुका ले, मेरे बाबा ने कहा है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला ने, अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, माँ बाप को छोड़ के कोई चला जाए तो अल्लाह नहीं मिलता, बाप को छोड़ के चले जाने से अल्लाह नहीं मिलता। माँ को अकेला छोड़ के बेटा दरबार पे झाड़ू दे तो अल्लाह नहीं मिलता। और ना ही उस पीर साहब ने कहा कि बाप बीमार हो और दूसरों का मोहताज हो और तुम मेरे दरबार पे आके झाड़ू दे, ये पीर की तालीम नहीं है, ये पीर की तालीम नहीं है कि बूढ़ी माँ चार पहिए के ऊपर बेचारी पड़ी हो और उसको दवाई देने वाला भी कोई ना हो, और हर जुमेरात को जाके दीवा भी माले और जाके वहाँ जो है चादर भी चढ़ाए, फूल भी चढ़ाए, और उधर बाप माँ जो है बिल बिला रही हो। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा मुर्शिद तो तेरा बाप है, बाप में सारे पीर है, पहला पीर तेरा बाप है, पहला मुर्शिद तेरी माँ है, पहला मुर्शिद तेरा बाप है। जब बाप को छोड़ के तो गैरों के पास जाएगा, जलील होगा, ख्वार होगा। मैं दावे से कहता हूँ जिसने माँ और बाप को तिल्फ देकर चाहे कि मैं अल्लाह का वली बन जाऊँ, मुझे दुनिया के अंदर एक मिसाल दिखा दो जिसने माँ को छोड़ा और अल्लाह का वली बना हो, जिसने बाप को छोड़ा और अल्लाह का वली बना हो, एक मिसाल मुझे ला के दिखा दो। पीर तो होता ही वही है, पहले तरबियत ही करता है। पीर कहते ही है बेटा जाओ अपनी माँ के कदम चुनो, और वो कहता भी यही है बाप के जाकर हाथ चुनो। पीर होता ही वही है जो आपकी इस्लाह करता है, वो ये नहीं कहता पूरा हफ्ता मेरे दरबार पे झाड़ू देते रहो, माँ बीमार है तो कोई बात नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल है, मैंने कहा माँ के बड़े हुकूक हैं, मैं अदा करता रहूँ, माँ से इजाज़त ले लेता हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं अल्लाह के अकेले में जाकर इबादत करूँ। अपने हकूक माफ़ करा लिए, माँ को कहा मुझे अपने हकूक माफ़ कर दो, मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। माफ़ी मांगी, इजाज़त दे दी माँ ने। बायजीद बुस्तामी कहते 40 साल तक, एक साल की बात नहीं कर रहा, 40 साल तक मैं जंगलों में फिरता रहा, पत्ते खाता रहा, रब 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 करता रहा, मुझे रब नहीं मिला। 40 साल गुजर गए, फिर इत्तेफाक से मैं अपने घर के दहलीज के पास आया, तहज्जुद का वक्त था, मेरा वहाँ से गुजर हुआ, मैंने कहा तहज्जुद का वक्त है, मैं रुक गया, दहलीज के बाहर बैठ गया। मैंने कहा मेरी माँ की आदत है सुबह तहज्जुद के वक्त उठती है, जब उठेगी ना तो मैं जाकर सलाम पेश करके फिर आगे चला जाऊँगा। सुबह तहज्जुद का वक्त हुआ, जो हमारे घर से नाली आती है उससे पानी के कतरे टपके, मुझे पता चल गया मेरी माँ जा गई है। आपने तहज्जुद पढ़ी कहकर मैंने कुंडी खटकाई, एक मरतबा दस्तक दी, अंदर से आवाज आई बायजीद बुस्तामी आ गए हो। 40 साल बाद माँ को इतना पता है कि मेरा बेटा आया है, बेटे की दस्तक की आवाज को भी माँ पहचानती है। बायजीद बुस्तामी कहता है मैंने सिर्फ दस्तक दी और मेरी माँ जब आई, दरवाजा खोला, मैं अंदर गया, मैंने कहा माँ मैं 40 साल गुजार के आया हूँ, अल्लाह अल्लाह करता रहा हूँ, पता नहीं अल्लाह राजी हुआ भी है कि नहीं हुआ। माँ मेरे लिए दुआ करे अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। जब माँ की हाथ उठे और कहा अल्लाह बायजीद बुस्तामी की 40 साल की इबादतें कबूल फरमा ले, गैब से आवाज आई बायजीद अगर सारी जिंदगी जंगलों में खाक खानता रहता, अल्लाह अल्लाह करता रहता, मैं राजी ना होता अगर तेरी माँ की दुआ ना होती।
बायजीद बुस्तामी को रब कब मिला? जब माँ के हाथ में गए। तो जंगलों में जाकर इबादत करने से तब कुछ मिलता है जब पीछे माँ की दुआ हो। और अगर अल्लाह का नबी हजरत मूसा जैसा नबी भी हो, कोहे तूर पे रब से मुलाकात हो, रब से हम कलाम हो, अल्लाह का कलीमुल्लाह हो, जब कोहे तूर पे जाए माँ जिंदा हो तो हाथ उठा के कहती है मेरे मौला मूसा आ रहा है, इसकी खैर फरमाना। जब माँ का ज़ाहिरी मिसाल हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम घर से चले, कोहे तूर की तरफ आए, रास्ते के अंदर गैब से आवाज आई, मूसा पहले आते थे और तरीका था, अब आना संभल के आना, माँ की दुआ नहीं होती। रब से कलाम करना हो तो फिर भी माँ की दुआ चाहिए, पीछे माँ का असर चाहिए। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, कहते हैं मैं हज करने गया। तवज्जो है सबकी? तवज्जो फरमा रहे हैं? नींद क्यों नहीं आ रही? हजरत मालिक बिन दीनार अल्लाह के वली कहते हैं मैं हज करने आया। हर साल हज करने आता, मैं एक शख्स को देखता। 24 साल हो गए थे मैं हज करने आया। 24वां साल था, मैं रात का वक्त हुआ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, मेरे मौला या अल्लाह जितने हाजी हज करने, अल्लाह सबका हज कबूल फरमा दे। फरमाते गैब से आवाज आई, मैंने सारे हाजियों के हज कबूल कर लिए, लेकिन एक शख्स है जिसका हज मैंने कबूल नहीं किया। सारे हाजियों का हज कबूल है, एक का हज कबूल नहीं है। तो हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं मेरे मौला फिर वो भी बता देना वो कौन है। और उसका नाम हारून है, फुला जगह पे रहता है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं सुबह उठा, मैं उस शख्स की तलाश में निकला, मैं उस कबीले में पहुंचा जहाँ उनके साथ आया हुआ था। मैंने पूछा यहाँ हारून नामी कोई शख्स रहता है? उन्होंने कहा रहता है, आप क्यों पूछ रहे हो? कहा बस मैंने उसका पता करना है। कहा वो तो अल्लाह का बहुत बड़ा नेक आदमी है और उधर कबूलियत भी नहीं है। अल्लाह ने फरमा दिया हज कबूल नहीं है हारून का। और जब कबीले में पहुंचे तो कहा उससे बड़ा नेक कोई नहीं है। मालिक बिन दीनार हैरान है, उधर अल्लाह का फैसला आ गया, हज कबूल नहीं है, इधर ये सारे कहते नेक है। कहा क्या नेकी है? कहा 24 साल हो गए मुसलसल हज करने आता है, इतना नेक है। 40 साल हो गए हर साल हज करने आता है, कोई हज कदा नहीं करता। कहता यार मुझे बताओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहा फुला जगह पे पहाड़ के पीछे वो बैठा है, अल्लाह ना कर रहा होगा। मालिक बिन दीनार कहते मैं वहाँ पे पहुँचा, हारून नामी शख्स बैठा हुआ था, मैं वहाँ पर पहुँचा। जब मैं वहाँ पर पहुँचा कहते मैंने आवाज़ भी नहीं दी, उसकी पलकें झुकी हुई थी, निगाहें झुकी हुई थी, अल्लाह अल्लाह के बेर के अंदर था। मैं जब जाकर आवाज़ देने लगा, मैंने कहा हारून, कहा मालिक बिन दीनार आए हो? मालिक बिन दीनार हो? उसने कहा तुझे किसने बताया कि मैं मालिक बिन दीनार हूँ? कहा यार मैं क्या बताऊँ, मुझे पता है कि मुझे पता करने वाला कोई आम नहीं हो सकता, अल्लाह का वली आ सकता है। मालिक बिन दीनार कहते मैं करीब पहुँचा, मैंने कहा बंदा खुदा बता तो सही आखिर तेरा जुर्म ही क्या है? सारे हाजियों के हज कबूल हो गए, तेरा हज कबूल नहीं अल्लाह करता, वजह क्या है? उसने कहा मालिक बिन दीनार रहने दो, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मालिक बिन दीनार कहता उसका सीधा हाथ भी कटा हुआ था। मैंने कहा बता तेरा हाथ भी कटा हुआ है, तो अल्लाह का नेक बंदा सारे तेरी गवाही देते हैं, लेकिन तेरा हज कबूल कोई नहीं, वजह क्या है, मामला क्या है? उसने कहा मालिक बिन दीनार रहने दे। उसने कहा यार बता तो सही जुर्म क्या है? कहा मेरा जुर्म ये है कि एक दिन अल्लाह ने मुझे मालो दौलत बढ़ा दिया था, रमज़ान का महीना था और रमज़ान के महीने के अंदर असर का वक्त था, मेरी माँ को रोज़ा था, मेरे घर वालों को रोज़ा था। मैं शराब के अंदर धुत घर में आया और आकर माँ को कहने लगा, मेरी माँ तंदूर के अंदर लकड़ियाँ डाल के तंदूर जो है वो रोटियाँ पकाने के लिए जला रही थी। मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ माँ मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। माँ कहती है बेटा खुद एक तो रोजा नहीं रखते, रोजेदारों का भी ख्याल कर लो, इफ्तारी का वक्त करीब होने वाला है, सारे इफ्तार करेंगे, आप भी साथ खाना खा लेना। कहा नहीं मुझे अभी खाना चाहिए, मुझे अभी खाना है। तो हजरत मालिक बिन दीनार कहते वो बंदा रोता रहा और कहता रहा। कहा जब असर के वक्त के बाद मैं माँ के सामने आया, जब
बदबख्त वो हूँ जो अपनी माँ को थप्पड़ मार देता हूँ। मैंने थप्पड़ मारा, मेरी माँ का ये चेहरे पे लगा, दूसरा हिस्सा तंदूर के अंदर जा पड़ा और जल गई मेरी माँ। और जब जली ना, फिर लोगों ने उठाया और कहा कि इसको कैद कर दो, इसको बंद कर दो, कमरे के बाहर ताला लगा दो, इसको बंद कर दो, ये बदबख्त शराब के अंदर पता नहीं क्या कुछ कर देगा। वो बेचारी माँ जिसको उसने थप्पड़ मारा आग के अंदर झुलसने लगी, फिर उसी झुलसते उसका इंतकाल हो गया, वो फौत हो गई। और उसने आखिरी लफ्ज ये कहे कि मेरी मैयत में मेरे बेटे को ना रहने देना, मेरा चेहरा मेरे बेटे को ना देखने देना। ये चेहरा मैं अपने बेटे के सामने नहीं दिखाना चाहती, मेरे बेटे को कैद कर दो, बंद कर दो। फिर लोगों ने जनाजा पढ़ाया, माँ का जनाजा उठ गया। दूसरे दिन उसको बाहर निकाला, पूछा मेरी माँ कहाँ है? कहा उसका तो बदबख्ता इंतकाल हो गया, तेरी वजह से मेरी माँ मर गई है, उसका इंतकाल हो गया, तूने ही उसे मारा है, तुम माँ का कातिल है। उठा, कुल्हाड़ा उठाया, जाके अपना हाथ काट दिया। कहा मेरे मौला मुझसे खता हुई है, मैं मानता हूँ, मैं शराब के अंदर मुलव्वस था, हाँ मुझसे खता हुई है। हाथ को काट दिया। फिर हाथ काटने के बाद कहते 24 साल हो गए, हर साल हज करके आता हूँ, रब के ताला के घर के तवाफ करता हूँ, काबा के गिलाफ को पकड़ के रोता हूँ, रब राजी नहीं हो रहा, रब नाराज है, रब राजी नहीं हो रहा। तो हजरत मालिक बिन दिनार उठ के जाने लगे। आप कहते हैं मैं चला गया, फिर रात को मैं सोया, मेरे मुकद्दर जाके महबूब के जलवागरी हो गई। मेरे महबूब ने फरमाया मालिक बिन दिनार मेरे मुरीद को, मेरे उम्मती को अकेला छोड़ के आ गया है, जाओ उसका पता करो। मालिक बिन दिनार कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं किस हालत में जाऊं, वो तो इतना बदबख्त है, माँ का कातिल है। मेरे महबूब ने फरमाया अल्लाह ताला उसे उसी माँ की वजह से अल्लाह उसको बख्शे फरमाए, उसे माफी भी उसी माँ की वजह से मिलेगी। मालिक बिन दिनार कहते हैं या रसूल अल्लाह वो कैसे? मेरे महबूब ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, हर तरफ लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में गिरफ्तार होंगे, उसी माँ को बुलाया जाएगा, लकड़ियाँ इकट्ठी की जाएंगी, जहन्नम को सुलगाया जाएगा, बेटे को बुलाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा इसके ऊपर इसको डाल दो। जब लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएगी उसके ऊपर बेटे को लाया जाएगा, माँ को सामने लाया जाएगा, माँ के सामने जब बेटे को लाया जाएगा, मेरे महबूब फरमाते हैं फिर जब लकड़ी को इकट्ठा करके उस बेटे को सामने लाया जाएगा, फिर पूछा जाएगा माँ बता तेरे बेटे को जलाया जाए या बजाया जाए, बता तेरे बेटे को या आग के अंदर डाला जाए या निकाला जाए। माँ चीख उठेगी और कहेगी मेरे मौला मैंने भी बेटे को माफ कर दिया, अल्लाह तू भी से माफी अता फरमा दे। मेरे भाई माँ की कदर करें, माँ नाराज है तो रब राजी नहीं होगा। 5 वक्त सजदे करें, अल्लाह के घर में आगे आगे खाने टिकाएं। बाप नाराज है कोई फायदा नहीं है, माँ नाराज है कोई फायदा नहीं है। अभी बाबा जी जिक्र कर रहे थे हजरत वैसे करने का, जानते हैं क्यों महबूब का दीदार न किया? वैसे तो वो दिन रात ही महबूब को देखा करते थे, हकीकत में जाहिरन जा न सके, किस वजह से? माँ की मोहब्बत में। एक वाकया मैंने पढ़ा, वैसे करने में एक मरतबा इजाजत मिल गई, इजाजत मिल गई। माँ ने कहा जाओ बेटा तुम्हारी दिल की ख्वाहिश है ना, जाओ महबूब का जलवा देख आओ, लेकिन ख्याल करना जल्दी घर वापस पलट आना, देर न करना। और माँ नबीना है, आंखों में रोशनाई नहीं है वैसे करने की, माँ की नबीना है, दिन रात खिदमत करते हैं। फिर मैं बता दूं वैसे करनी को अल्लाह ने मकाम क्या दिया है। वैसे करनी चले करन से चले और चलते चलते मदीना पहुंचे। जब मदीना मस्जिद नबी में पहुंचे, जोहर की नमाज का वक्त है, इत्तेफाक से महबूब मस्जिद में नहीं है। हुजूर किसी काफिले के साथ तशरीफ लेके गए, हुजूर असर के बाद आए, तो वैसे करनी जोहर पढ़ते हैं, असर का इंतजार नहीं किया, वापस पलट जाते हैं। फिर वापस पलट के माँ की खिदमत में आ जाते हैं, कहते माँ मैंने वादा किया था वापस जल्दी आ जाऊंगा। माँ महबूब का दीदार तो नहीं हुआ, लेकिन माँ बता तू राजी है? माँ तेरी रिजा इसी में है, कुर्बान जाइए। माँ की फर्माबरदारी के अंदर महबूब का चेहरा नहीं देखा, वापस पलट के आ गए। क्या मेरे महबूब खुद फरमाते हैं यार क्या मकाम है, जब वापस
पलट के वैसे करने घर आ गए। महबूब आए, महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात पर भी कुर्बान थे। अल्लाह ने महबूब को इल्मी आसान फरमाया। महबूब नमाज असर में आए, नमाज पढ़ी। नमाज के बाद मेरे महबूब ने फरमाया कि मेरा गुलाम आया था, एक मेरा गुलाम आया था। महबूब फरमाते कि मेरा गुलाम आया था। हाँ या रसूल अल्लाह, कि यमन से चल के, करन से चल के महबूब आपके पास आया था, लेकिन वो तो आपके मिलने बगैर पहले चला गया। महबूब खड़े हो गए। हदीस के लफ्ज़ है, महबूब ने सामने वाले बटन खोले, यमन की तरफ सीना किया और सीना करके मेरे महबूब के लफ्ज़ सुनिएगा। मेरे महबूब फरमाते हैं, यारों मुझे यमन से मेरे यार की ठंडी ठंडी हवा आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है। साहबा कहते या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा आशिक जिसके लिए आप अपना गिरबान चाक करके उसके लिए ठंडी हवाओं की दुआएं दे रहे, इतना बड़ा आशिक था तो मिल के जाता ना। महबूब फरमाते हैं उसकी एक बूढ़ी माँ है, एक नबीना माँ है, जो उसको मेरे करीब से यानी मेरे करीब नहीं आने देती, वरना अगर पूछो तो वो दिन रात मेरे पास ही रहता है, तो दिन रात मेरे पास ही रहता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, ऐ लोगों सुनो, हजरत उमर को बुलाया, हजरत अली को बुलाया, पास बिठाया और फरमाया, उमर, अली, मुझे मेरी जिंदगी में अगर वो आ गया, मुलाकात हो गई तो ठीक है, अगर वो ना सका तो फिर मेरी एक वसीयत याद करना। उमर, अली, चले जाना यमन, करन चले जाना और वहाँ जाकर उवैस नामी एक शख्स होगा, करन में रहने वाला होगा। नाम भी मेरे महबूब बता रहे हैं, नाम क्या होगा? हुजूर से मिले नहीं है, बज़ाहिर मुलाकात भी नहीं है, हदीस के लफ्ज़ हैं। मेरे महबूब फरमाते हैं, उवैस बिन आमिर, आमिर का बेटा उवैस है, नाम भी बताया। मजे की बात बताऊं, आगे भी हुजूर ने फरमाया, निशानी भी बता देता हूँ, तुम जाओगे तो मैं क्या पता उवैस कौन है, निशानी भी बताता हूँ उवैस कैसा होगा, वो कैसा होगा। महबूब ने फरमाया, सबसे पहली निशानी यह है कि उसकी जो दाढ़ी है ना वो गर्द गुबार होगी, दाढ़ी के ऊपर गर्द गुबार होगा, और वो जो ठोड़ी है ना वो सीने पे रखता यूं, पलके उठा के नहीं देखता, निगाहें झुकी रहती है, उठा के नहीं देखता। पहली निशानी ये। दूसरी मेरे महबूब ने फरमाया निशानी ये है कि उसके सीधे हाथ के ऊपर एक दाग होगा, सीधे हाथ पे एक दाग होगा, और वो दाग किस लिए होगा ये भी मेरे महबूब ने बताया। महबूब ने फरमाया, उमर, अली, तुम पहचानोगे फिर जब उसका दाग देखना, तुम्हें पता चल जाएगा यही उवैस है। मेरे महबूब ने फरमाया, एक मरतबा उवैस को बुखार हुआ, बीमार हो गया, सारे जिस्म के ऊपर ये दाग पड़ गए, पूरा जिस्म के ऊपर ये सारे सफेद दाग पड़ गए। फिर जब ठीक हुए, दाग मिटते गए, मिटते गए, मिटते गए। मेरे महबूब कहाँ बैठ के बता रहे हैं? लोग तराजू लेके मेरे महबूब के इल्म को नाप रहे हैं। बदबख्तों, मेरे महबूब अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया जो तुम्हारी आंखों से बाहर बना है। महबूब मदीने में भी बैठे हों तो हमारे दिलों पे आबाद हैं, हमारे दिलों की हालत भी जानते हैं, मोमिन की हालत भी जानते हैं, गुलामों की कैफियत से वाकिफ है। महबूब खुद फरमाते हैं, जो मोहब्बत से एक मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़े, उसका दुरूद मैं खुद समाप्त फरमाता हूं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों सुनो, मैं मुख्तसर करता हूँ, इंशाअल्लाह फिर महफिल को आगे चलाते हैं, इंशाअल्लाह जिक्र भी होगा, दुआ भी होगी, इंशाअल्लाह तमाम इस्लाम भाई दिल जमी के साथ बैठे रहे। ये रात हमने अल्लाह के घर में गुजारनी है, नियत है इंशाअल्लाह, इरादा है या जागने का इरादा है? यार एक रात अल्लाह के घर में गुजार दो, दे दो अल्लाह के घर को। आज घर वालों को कह दो कि हम शहर नहीं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह
حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی سنیے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب ہے جو خیر التابعین ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ایک مرتبہ بخار ہوا تھا، پھر داغ مٹتے گئے، ایک داغ جب اویس کرنی کا بچ گیا، اویس کرنی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا یہ سارے داغ تو مٹاتے جا رہا ہے، ایک داغ تو رہنے دے تاکہ میں یہ یاد کر کر کے تیری رحمت کو یاد کرتا رہوں گا، میرے مولا نے مجھے بیماری دی تو مجھے شفا بھی عطا فرمائی۔ میرے محبوب کہاں بتا رہے ہیں؟ مدینے میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں عمر اگر ملے تو ایسی حالت ہوگی، ویسے کرنے کی یہ حالت ہوگی۔ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضور کا ظاہری مثال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم 10 سال مسلسل حج کے موقع پہ آتے اور اعلان کرتے لوگوں سنو، کوئی کرن کرانے والا اویس ہے جو قافلے کے ساتھ آیا حج کرنے کے لیے اویس ہے؟ کوئی نہ بتاتا۔ 10 سال گزر گئے تھے، 10واں سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یار بتاؤ اویس ہے کوئی؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا عمر اویس تو ہے لیکن آپ خلیفہ وقت ہیں، آدھی دنیا کے حکمران ہیں، آپ کی زبان پہ اویس کا نام ہے، وہ اتنا قابل نہیں ہے، اس کو تو بچے بھی نہیں جانتے، وہ تو گلی سے گزرے تو بچے اس کو روڑے مارتے ہیں، بٹے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اس کو کون جانتا ہے؟ آپ کے منہ سے نکلے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح ہے وہ کہاں ہے؟ وہ تو پاگل ہے، وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو مجنون ہے۔ کہا یار وہ مجنون کا مجھے تو بتاؤ ہے کہاں؟ کہا وہ مجنون ایسا ہے، ہم دیکھو طواف کر رہے ہیں، وہ ہمارے اونٹ لے کے وہ عرفات کے میدان میں چلا رہا ہے نا دیوانہ، ہے نا پاگل؟ دیکھو ہم حج کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، وہ ہمارے اونٹ چلا رہا ہے۔ قربان جائیے، حضرت عمر فاروق اعظم کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، پہاڑی پہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے، عمر نے خطبہ چھوڑا، روایت کے لفظ ہے حضرت عمر نے وہیں سے دوڑ لگا بھاگنا شروع کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں بھی عمر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا، جوتا دونوں کے پاؤں میں نہیں ہے، دوڑتے عرفات میں پہنچے، ایک درخت کے نیچے حضرت اویس کرنی سجدے کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے مشغول ہیں، کہتا سجدے سے سر اٹھائی، حضرت عمر فاروق اعظم کہتے میں ادھر بیٹھ گیا، علی ادھر بیٹھ گیا۔ قربان جائے یار اس جملے کی قیمت جانیے گا، بہت بڑا قیمتی جملہ دے کے جا رہا ہوں، اس کو ذہن نشین کر لیجیے گا کہ ویسے کرنی کو ماں سے محبت کتنی ہے، پیار کتنا ہے۔ جب قریب آ کے بیٹھ گیا نا تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا، حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا بتا یہ کون ہے؟ پہلی نشانی تو دیکھ لی تھی کہ داڑھی کے اوپر گرد و غبار بھی ہے اور تھوڑی بھی سینے کے ساتھ لگی ہے۔ کہتے ہیں پھر آپ نے کیونکہ نماز کی حالت میں ہم قریب بیٹھ گئے تھے، ہم نے کہا ویسے چلو پوچھ تو لیں شاید ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا بتا میاں بندہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ تعارف ہے اور ہمارا تعارف بھی یہی ہے، ہم چودھری خان گجر بال میں پہلے اللہ کے بندے ہیں، ہم عبداللہ ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، یہی تعارف ہے۔ اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ یہی تعارف پیش کرتا ہے، وہ القابات سے نہیں، وہ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے اب اللہ کے بندے ہو، عبداللہ ہو، لیکن بتاؤ کوئی اور نام بھی ہوگا؟ اس نے کہا میرا نام راعی ہے، میں چرواہ ہوں، بکریاں چراتا ہوں، یہ میرا تعلق ہے، راعی ہوں، بکریاں چراتا ہوں، جانور چراتا ہوں۔ پھر شام کہا کہ ماں کی خدمت کر اور کوئی کام نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ 2 سوال کیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے عمر مجھے پوچھنے تو میں پوچھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ بتاتا کہ نہیں بتاتا۔ حضرت علی آگے آئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم جب آپ کے قریب بیٹھے نا، جملہ سنیے گا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں اے بندہ خدا عبداللہ بتا تو صحیح وہ نام میں پوچھ رہا ہوں کہ تیری ماں نے تیرا رکھا ہے، وہ نام بتا۔ کہتا گھوڑی اٹھ گئی، سینہ اٹھنے لگا، چہرہ اٹھ گیا، میری طرف دیکھ کے کہنے لگا بتا تو کون ہے جو میری ماں کا واسطہ دے کے میری ماں کا نام لے کے واسطہ دے کے
फारूक आज़म है। हाथ जोड़ के बैठ गए, मुझे पता नहीं था आप सहाबी रसूल हैं, बेअदबी की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप कैसे आए हो? हजरत उमर फारूक आज़म आगे क्या करते हैं, हदीस के लफ्ज़ सुनिएगा। हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, ए उवैस अपना हाथ तो आगे करो, सीधा हाथ तो आगे करो। हजरत उमर फारूक आज़म ने हाथ को पकड़ा, करीब किया। लोग तो पता नहीं कहां से मसले लेके आ जाते हैं। उमर फारूक आज़म ने उवैस करने का, सहाबी है, ताबी का हाथ पकड़ा, सहाबी है, ताबी का हाथ पकड़ा। दाग वाली जगह को हजरत उमर फारूक आज़म अपने होठों के करीब ले जाते हैं, ले जाके बोसा देते हैं, चूमते हैं और चूम के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उस मंजिल तक पहुंच गए हैं जिस मंजिल का पता मेरे महबूब आपने बताया था। किसने चूमा है जी? हजरत अली ने भी चूमा, उमर ने भी चूमा, सहाबी हो के ताबी को चूम रहा है। और क्यों चूम रहा है? मां के अदब की वजह से चूम रहा है, हुजूर की निशानी की वजह से चूम रहा है। और वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फिर मेरे महबूब ने क्या फरमाया, जब वो मिल जाए ना तो फिर करना क्या, उसको कह देना मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर दे। और महबूब की दुआ में कितना असर है, मेरे महबूब की दुआ में कितना असर है, जिसके बारे में मेरे महबूब कहे मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करवानी है तो वैसे के पास जाना। इसका मतलब ये है, जो माँ बाप का फर्मा बरदार होता है उसकी दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। तो वैसे करने को लोग बच्चे पत्थर मारते हैं और फिर आगे क्या कहते हैं, बेटो पत्थर मारो, पत्थर मारो। मैं इसी लायक हूँ, मुझे पत्थर मारे जाए। फरमाते हैं पत्थर मारो, लेकिन छोटे छोटे मारना, बड़े पत्थर ना मारना, छोटे छोटे पत्थर मारना। छोटे पत्थर मारोगे तो खून थोड़ा बहेगा, बड़े मारोगे तो खून ज्यादा बहेगा। मेरा वुजू टूट जाता है, फिर मुझे नहर पे जाना पड़ता है। मैं नमाज का आदी हूँ इस वक्त, क्योंकि नमाज कज़ा ना हो जाए। पत्थर मारे करो, छोटे छोटे मारा करो, ताकि मैं अल्लाह की इबादत वक्त पे कर सकूं। और फिर वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला को क़यामत वाले दिन जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा। जन्नत के दरवाजे पे जाके कहेगा, मेरे मौला बड़ी मुश्किल से जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, यहाँ पे रोक दिया गया। वैसे करने को हुक्म होगा, मेरा रब फरमाएगा वैसे करनी, जो भी आपसे मोहब्बत करने वाला है, जो आपसे प्यार करने वाला है, जो भी वालिदैन का फरमाबरदार है, वैसे करनी। उंगली उठाओ, जहाँ जाते उंगली फिरेगी, सबको जन्नत उठा करो। मेरे भाई वालिदैन का सब एहतराम करें, वालिदैन को मकाम दें, वालिदैन के साथ प्यार करें। इस रात के अंदर जो वालिदैन का नाफरमान है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम बैठे, खत्म कर दें। हाँ जी, खत्म करना अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ लाते हुए आखिरी दो हदीस से आपके सामने पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह उसके बाद जिक्र और दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का आना कबूल और मंजूर फरमाए। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए मस्जिद नबवी का सहन है। तवज्जो है सबकी। महबूब अलैहिस्सलाम सहन में है, वो ऐसे तमाम सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द है। एक बुढ़िया खातून आई, बुढ़िया खातून आई, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ गई। महबूब खड़े हो गए, खड़े हुए, सहाबा को चीरते हुए महबूब बाहर आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुज़म्मिल वाली चादर को, ये कमली वाली चादर को उतारा, जमीन पे बिछा दिया। और जब जमीन पे बिछाया ना, उस बुढ़िया खातून को मेरे महबूब ने कहा, फरमाया इसके ऊपर बैठ जाओ। वो बुढ़िया बैठ गई। सहाबा कहते हैं हम हैरान हैं, परेशान हैं, ये वो आम चादर तो नहीं थी, ये कोई आम चादर तो नहीं थी, ये तो वो चादर थी फरमाया जिसको हाथ में लगाने के लिए सहाबा तरसते थे। ये कोई आम चादर नहीं थी। इसकी कसमें अल्लाह कुरान में खा रहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम इल्ला क़लीला,
ऊपर उठे तो अल्लाह फरमाया या अय्युहल कुम फांजिर रब्बका फकब्बिर। ये आम चादर तो नहीं थी, हुजूर ने चादर को बिछा दिया और मेरी कुर्बान चाहिए बुढ़िया आई ऊपर बैठ गई। और जब ऊपर आकर बैठी ना, हुजूर सल्लल्लाहु ऐसे बैठे जैसे अत्तहियात में कोई बंदा बैठता है, अत्तहियात में अदब और एहतराम के साथ आके बैठ गए। जब इस हालत में बैठा तो वो बुढ़िया बातें करती रही। हुजूर सुनते रहे। अच्छा, यहाँ से मुझे एक बात और याद आ गई, इससे रिलेटेड है, फिर इसको मैं पूरा करता हूँ। एक और खातून हुजूर की बारगाह में आई मदीने के अंदर, वो उसको पागल कहते थे, मजनून कहते थे। वो जिसके पास जाती बातें शुरू कर देती, उसकी बातें खत्म नहीं होती। और बाद बात होती है ना इलाके में, औरत कोई ना कोई ऐसी होती है जो ज्यादा बोलने वाली होती है, उससे जान छुड़ानी पड़ती है। तो वो मदीने में ऐसी थी जिसको पकड़ती बातें शुरू करती, खत्म ही नहीं होती थी। तो मेरे मामूल सल्लल्लाहु के पास आ गई। गर्मी का दिन है, दिन की फुल तपिश है। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु को उसने बुलाया। महबूब चल के गए, दीवार के साथ हुजूर टेक लगा के खड़े हो गए। वो खातून बातें शुरू कर देती, बातें करती रही। हुजूर सुनते रहे। वो खुद चली गई। हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे या रसूलल्लाह, आपका नाजुक बदन और आप नबूवत के आला मनसब पर सरफराज हैं, और आप ऐसी औरतों की बातें सुनते हैं जिसकी मदीने में कोई भी नहीं सुनता। सुनिए मेरे महबूब ने क्या फरमाया। मेरे महबूब फरमाते हैं जिसकी कोई नहीं सुनता उसका मोहम्मद अरबी सुनता, जिसकी कोई ना सुने उसे मेरे महबूब सुनते हैं। वो औरत आई, हुजूर के साथ बैठ गई। हुजूर बैठे रहे, अत्तहियात की शक्ल में बैठे रहे, आका दो आलम सल्लल्लाहु बैठे रहे। साहबे किराम अलैहि रिज़वान कहते हैं हमें हैरान हो गए कि हुजूर ने अपने चादर के ऊपर जिसे बिठाया कयाम तो नहीं है। फरमाते वो बातें करती उठ के चलेगी। हजरत उमर फारूक आजम पूछने लगे या रसूलल्लाह करम फरमाइए, बता दीजिए इतना अदब और एहतराम करना का मकसद क्या है, कौन सी मर्तबा था, कौन खातून थी। मेरे महबूब ने फरमाया मुझे दूध पिलाने वाली मेरी माँ हजरत हलीमा साहब, जिसने सिर्फ दूध पिलाया उसका ये मकाम है, और जिसने महबूब अलैहिस्सलाम को जन्म दिया उसका मकाम क्या होगा, उसका रुतबा क्या होगा। आखिर में ये बात अर्ज करता हूँ, वालिदैन का फिर भी अदब एहतराम करें, इसके बगैर चारा नहीं है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर सजदे नहीं है, इसके बगैर इबादत कबूल नहीं है। तो आज हमारे माशरे की बहुत बड़ी नहुसत है कि आज हमारा क्या होता है कि जब बाप बूढ़ा हो जाए और बहू घर में आ जाती है तो फिर फसाद शुरू हो जाते हैं। मैं लड़ाई नहीं करा रहा आपकी, सिर्फ समझा रहा हूँ उन माओं बहनों को जो कल तक वो किसी की बेटियां थी, उनकी भी ख्वाहिश यही होती थी, आज वो बूढ़ियाँ हो गई, कल उन्होंने भी बूढ़ा होना है, उन्होंने भी इसी रुतबे में आना है, उन्होंने भी सांस बनना है, उन्होंने भी इसी मर्तबा पाना है। उनसे गुजारिश यही है कि खुदारा अपने घरों को आबाद करना है तो इस अंदाज से करें, अपने शोर को वक्त दें, अपने उनके वालिदैन को भी वक्त दें, उनका भी अदब एहतराम करें। अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। होता क्या है, एक मैंने वाकया पढ़ा है कि एक नई नवेली दुल्हन घर में आई, शादी होके जब घर में आती है तो फिर होता क्या है, क्योंकि लड़ाई झगड़े अमूमन शुरू हो जाते हैं। वो कहती है कि 2 बच्चे उसके हो गए, अब बच्चे छोटे छोटे थे, और उसकी माँ जो थी वो बूढ़ी हो गई, वो खांसती थी, और उसकी जो बीवी थी वो कहती थी मेरे बेटों को तकलीफ होती है आपकी माँ की वजह से, ये खांसती है तो मेरे बेटों को तकलीफ होती है। तो आजकल तक यूँ कह लें कि कोरोना होता है, तो इस हालत के अंदर वो पहुँच गई। उसने कहा कि अब करना क्या करूँ मैं। बीवी का मशवरा ये था कि मेरे शोर एक ही फैसला है, या मैं रहूँगी या तेरी माँ रहेगी, या मैं रहूंगी या माँ रहेगी, ये फैसला कर लो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, फैसला कर लो। अब इकट्ठे नहीं रहा जाता, ये खांसती है, इसकी बलगम पूरे घर में फैलती है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे बच्चों पे असर होता है, या फिर इसको घर से निकालो या फिर मैं जा रही हूँ। उसने कहा चलो मैं सोचता हूँ माँ के पास गया, माँ मेरे घर का मामला है, मेरे बीवी बच्चों का मामला है। यार जिस माँ ने 9 महीने पेट में पाला है, उसने तकलीफें बर्दाश्त की हैं, सारी जिंदगी भी अगर कोई एहसान दिखलाए और हक अदा नहीं कर सकता, जब तुझे तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया था उस वक्त की तकलीफ को सारी जिंदगी की तो अपने कंधों पे उठा के तवाफ भी कराता रहे, हज भी कराता रहे, उसका हक अदा नहीं कर सकता है। तो फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, माँ के आगे हाथ जोड़ लिए, मेहरबानी करें आपको मैं ओल्ड हाउस में जमा कराता हूँ,
ओल्ड हाउस समझते हैं? हमारे पाकिस्तान में भी बने हुए हैं, बड़े बड़े शहरों के अंदर, जहाँ बूढ़े माँ बाप को जाके जमा कराया जाता है। चलो जी, अभी आपके सपोर्ट है, हम आजाद हैं। 8-8 बच्चों को पालने वाली माँ आज धक्के खाती है। वजह क्या है कि वालिदैन की नाफरमान होगी औलाद। 8-8 बच्चों को एक माँ पालती कि नहीं पालती? माँ बाप मिलके 8-8 बच्चों को पालते हैं, और फिर ये 8 बच्चे मिलके फिर ये कहा 2 महीने मेरे पास रहेगी, 2 महीने तेरे पास, 1 महीना उसके पास, 1 महीना उसके पास। पहले बचपन में हम क्या कहते हैं? माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। जब बड़े होके फिर कहते हैं माँ तेरी है, दूसरा कहता है माँ तेरी है, दूसरा कहता है माँ तेरी है। इस नौबत में पहुंच गया। उसने क्या कहा, चलो मैं तुझे जमा करा देता हूँ ओल्ड हाउस के अंदर। जाके जमा कराया, वहां लिखवा के आया, जब इसका आखिरी वक्त है ना, मुझे बुला लेना, फिर मैं इसको संभाल लूंगा। और उनका यही होता है, जब मरने लगे तो फिर उसको बुलाया जाता है, फिर माँ बाप उसको लेके चले जाते हैं। उसने कहा मुझे बुला लेना। ऐसा हुआ कि कुछ ही अरसे के बाद उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई और उसका आखिरी वक्त आने लगा। उसके बेटे को कहा कि उन्होंने कहा, लो भाई आपकी वालदा का आखिरी वक्त है, कोई बात करनी तो आके कर लो। बेटा आ गया, माँ के सामने बैठ गया। माँ, मैंने बड़ी खताएं की, गलतियां की है, कोई वसीयत करना चाहती हो? उसने कहा बेटा वसीयत का वक्त खत्म हो गया, जो तूने करनी थी मेरे साथ कर लिया, पीछे बचा ही क्या है, बस थोड़ी सी गुजारिश है, अगर ये कर दो। ये ओल्ड हाउस के बाहर गर्मियों के अंदर जो बाहर पंखे लगे हुए हैं ना, ये 2 पंखे खराब है तो सही करा दो। ये छोटी सी ख्वाहिश है, इन पंखों को क्या करा दो? सही करा दो, बस थोड़ी सी ख्वाहिश है, ये करा दो। उसने कहा माँ ये कैसा सवाल है, आप तो दुनिया से वैसे जा रही हो, बाद में दूसरों के माँ बाप इसके अंदर आएंगे, जो होगा आपको क्या फिक्र लगी है, और आप इस तरह क्यों कह रही हो कि इनके पंखों को ठीक करा दो या नए लगवा दो? उसने कहा बेटा मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे तेरी फिक्र है। समझे नहीं? मुझे अपनी फिक्र नहीं है बेटा, तेरी फिक्र लग गई है। उसने कहा क्या मामला, क्या वजह? उसने कहा बेटा जो बोओगे वही काटोगे। आज मुझे जमा कराया है, तेरे बेटे भी जवान होंगे, तेरे बेटे भी बहू लेके आएंगे, फिर तुझे भी उठाएंगे और यहाँ ला के जमा कराएंगे। मैं माँ हूं ना, इसलिए कह रही हूँ बेटा जब मेरा यहाँ पर आए तो उसे घर भी महसूस ना हो। मेरे भाई, माँ बाप का तो एहतराम करें, माँ बाप को इज्जत दें, माँ बाप का तो एहतराम करें। आज जितने भाई यहाँ पर हाजिर हैं, मैं हाथ जोड़ के आपके सामने अर्ज करता हूँ, अगर किसी का माँ बाप नाराज है, इस रात जाकर उनके कदम पकड़ लो, माफी मांग लो। बाप नाराज है, माफी मांग लो। माँ नाराज है, कदम चूम लो, जाके पकड़ लो, वरना इसके बगैर चारा कोई नहीं है। आप इतने बड़े चौधरी हो, गुजर हो, कुछ भी हो, बाकी बाद में सारे हो, पहले किसी के बेटे हो। जाओ, आपकी सफेद दाढ़ी की आप ये ना कहो कि मेरी माँ है, मेरी सफेद दाढ़ी, मैं कैसे जाके झुकूं माँ के सामने? माँ से जाके पूछो तेरी सफेद दाढ़ी की अभी तुझे बच्चा ही कह रही है, उसके सामने तो बच्चा ही है, छोटा बच्चा ही है, चाहे तेरे सफेद बाल भी आ गए। तो मेरी अर्ज है आपको कि अगर किसी का माँ बाप नाराज है तो जाके माफी मांग ले, जाके उनके पकड़ ले हाथ, पकड़ ले उनके पाँव, चूम ले। मेरे महबूब ने फरमाया जिसने माँ बाप के कदम को बोसा दिया उसे जन्नत की चौखट को बोसा दिया। तो नियत है बेशक, वरना इस रात के अंदर भी उसकी बख्शिश नहीं है। हम बैठे हैं अल्लाह की इबादत के लिए बैठे हैं, उसकी बख्शिश नहीं है जिसने वालिदैन की नाफरमानी की है। पहला मैंने क्या किया था, शिर्क करने वाला, इस रात की बख्शिश उसकी नहीं है। दूसरा जिना करने वाला, तीसरा शराब पीने वाला, और चौथा वालिदैन का नाफरमान, इस रात उसकी भी बख्शिश नहीं है। अल्लाह की बारगाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ये मेरे टूटे फूटे अल्फाज अपनी पाकीज़ा बारगाह के अंदर सिर्फ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह ताला इस रात के फैल सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह भी जिक्र होगा, जिक्र के बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी, दुरूद सलाम होगा, इंशाअल्लाह लंगर का तमाम इस्लामी लंगर भी खा के जाएगा इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद ऐलान करते हैं सलात तस्बीह का, जैसे वक्त मुनासिब होगा, और इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल कब्रिस्तान की तरफ इंशाअल्लाह रवाना हो जाएंगे। Kasar.